حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن ایک تلوار پکڑ کر فرمایا، مجھ سے یہ کون لیتا ہے؟ تو ہر ایک نے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار مجھے دیجئے، مجھے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا، اس تلوار کو کون لے گا اس کے حق کے ساتھ، یعنی وہ پکڑے جو اس کا حق ادا کر سکے۔ تو اب صحابہ نے ہاتھ کھینچ لیا، اب یہ سوچنے لگے کہ اس کا حق کیا ہے، ہجانے لگے کہ اس کا حق کیا ہوگا۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی، آگے بڑھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تلوار مجھے دیجئے، میں اس کا حق ادا کر دوں گا۔ اور پھر حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار نبی علیہ السلام کے دستے رحمت سے پکڑ لی، مشرقین کی چوٹیاں پھاڑ ڈالی، اس بے جگری سے لڑے کہ سینکڑوں مشرقین کو واصل جہنم کیا۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کے کرنے کا جب حکم ارشاد فرماتے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بلکہ آگے بڑھ کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس امر کو پورا فرماتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حجاج کی طرف سے آنے والے مصائب کا ذکر کیا۔ کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی گئی حضرت انس بن مالک کی بارگاہ میں کہ حجاج بڑے ظلم و ستم کر رہا ہے، ہمیں بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ تو انس بن مالک نے فرمایا، صبر کرو، ہر بات میں آنے والا زمانہ پہلے کی نسبت بڑا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب کو ملو۔ اور میں یہ تمہاری بات رسول اعظم علیہ السلام سے میں نے سنی ہے کہ جو بات میں نے تم سے بیان کر دی کہ صبر کرو، آنے والا جو زمانہ ہے پہلے کی نسبت بڑا ہوگا، اور یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے گی اللہ سے ملو گے۔ اور اسی پر جو حدیث پاک آگے بیان کی، حضرت ابو ہریرہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال صالح 7 چیزوں سے پہلے کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ 7 چیزوں سے پہلے اعمال صالح کر لو۔ ان میں پہلی چیز کیا تھی؟ فرمایا ایسی محتاجی کا انتظار ہے جو بھلا دینے والی۔ کیا تم ایسی محتاجی کا انتظار کرتی ہو جو ہر چیز تمہیں بھلا دے گی؟ جب بندہ اصل میں محتاج ہوتا ہے پھر تو اسے خود ضرورت ہوتی ہے کوئی اس کی مدد کرے۔ تو محتاجی سے پہلے اعمال صالح کر لینے چاہیے۔ اب جناب علی وہ چارپائی پہ اٹھ سکتا نہیں تو اب وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ تو اس سے پہلے اعمال صالح کرو، نیک اعمال کرو۔ یہ ایسی تونگری جو سرکش بنا دے کہ تیرے پاس اتنی دولت آ جائے تو سرکش بن جائے، تیرے اندر تکبر آ جائے، تکبر سرکشی گھوٹ گھوٹ کے تیرے اندر بھر جائے۔ ان چیزوں کا تو انتظار کرے، یا ایسا مرض جو خراب کر دے تجھے، تیری طبیعت کو بگاڑ دے، ایسی بیماری لاحق ہو جائے، اس بیماری سے آنے سے پہلے، محتاجی کے آنے سے پہلے، ایسی تونگری آنے سے پہلے
नेक अमाल कर लो, अमाल सहले की कसरत कर लो। और या ऐसा बुढ़ापा जो बंदे को कुबाड़ कर दे। बुढ़ापा बंदे पे देखो आ जाता है, वो उठने के काबिल ही नहीं होता। इस कदर बुढ़ापा भी आ जाता है, वो बाज दफे खुद अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता। अब उस उम्र में वो कहे मैं अल्लाह का बड़ा जिक्र कर रहा हूं, ठीक है, मगर अल्लाह के यहां जो मकबूल तरीन इबादत है वो जवानी की इबादत है, सेहत और तंदुरुस्ती वाली इबादत है। बूढ़ा होके तो शेर भी कहता मैंने कभी शिकार नहीं किया। अब जब तेरे गिट्टे और तेरे टखने हिल रहे हैं, टांगे काम नहीं कर रही, हाथ उठ नहीं सकते, जुबान पूरी तरह बोलती नहीं है, और अब तू कहता मैं अल्लाह के हुजूर झुक रहा हूं, ठीक है, लेकिन इबादत तो असल वो थी जो उम्र तूने खेल कूद में गंवा दी, अल्लाह की नाफरमानी में गंवा दी। अब जेब में एक टका नहीं है, अब कहता जी ये 5 रुपए अल्लाह की राह में दे दूं। भाई जब तुम मालिक था दौलत का, तेरे हाथ में पैसे थे, सब कुछ था, फिर तूने क्यों नहीं अल्लाह की राह में खर्च किया? उस वक्त तो तू कोठी बंगले और कारें बनाता रहा, फिक्र ही नहीं की। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा बुढ़ापा आने से पहले कि तुझे कुबाड़ बना दे, हम आमाले साले कर लो, और यह मौत जो जल्द तुम्हें अल्लाह की बारगाह में भेज दे, दज्जाल जो छुपा हुआ एक शर है, या कयामत आ जाए कि फिर मैं नेकी करूंगा। कयामत आने से पहले नेकी करो, मौत से पहले नेकी करो। ऐसा शर आ जाए, ऐसा फितना बपा हो जाए कि तुम नेकी के काबिल ही ना बचो। और फरमाया कि कयामत तो बड़ी दहशतनाक है, बड़ी कड़वी है, और इसके आने से पहले तुम नेकी कर लो। तो नेकी के हवाले से कि नेकी कसरत के साथ करो, बढ़ के करो, जवानी में करो, तंदुरुस्ती में करो, जब दौलत आ जाए राह खुदा में खर्च करके करो। यही तो वो बात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो सिहाबा हाजिर हुए जो माली तौर पे कमजोर थे। या रसूल अल्लाह हम नेकियों में पीछे रह गए। मेरे नबी ने फरमाया क्यों? कहा हम अमीर सिहाबा के मुतल्लिक का, साहिब दौलत और साहिब ताकत सिहाबा के मुतल्लिक का। मेरे नबी ने फरमाया क्यों? अर्ज की या रसूल अल्लाह वो भी नमाजें पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी जिहाद करते हैं, हम भी जिहाद करते हैं, वो भी रोजे रखते हैं, हम भी रोजे रखते हैं, नवाफिल वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, आपकी बारगाह में वो भी आते हैं, हम भी आते हैं, मगर अल्लाह ने उनको दौलत दी है, वो दौलत खर्च करके हमसे ज्यादा सवाब और नेकियां हासिल करते हैं, जबकि हमारे पास दौलत नहीं है। यानी सियाबा के तजस्सुस के नेकियों में वो हमसे बढ़ रहे, हम क्यों नहीं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी दिलजोई फरमाई। क्या अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो पैसा खर्च करके ज्यादा नेकियां इकट्ठी करते हैं। फरमाया तुम किसी से मुस्करा के बोलोगे सदका हो जाएगा, अच्छी बात करोगे सदका हो जाएगा। फरमाया तुम्हारा मुस्करा के बोलना, अच्छी बात कर लेना, फरमाया तुम्हें उनके बराबर नेकियों में ले जाएगा। आगे आज इसी मौजू पर जो आगे हदीस आई कि खैबर के दिन आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया यह झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जो अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, उसके हाथों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फतह अता करेगा। हजरत उमर पाक फरमाते मुझे कभी भी दिल में ख्याल ही नहीं गुजरा कि किसी लश्कर का अमीर बनूं, इमारत का ख्याल भी मेरे दिल में नहीं आया कभी भी। खादिम का ख्याल जरूर रहा कि खादिम बन के रहूं, मुजाहिद बन के रहूं। पर कहते जब नबी अलैहिस्सलाम ने यह जुमला कहा कल उसको झंडा मिलेगा कि अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करता है, तो फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया, अमीर बनने की ख्वाहिश हुई, इसके लिए मैं खड़ा हुआ,
बुलंद भी हुआ इस उम्मीद पर कि कल मुझे बुलाया जाएगा, कल मुझे ये झंडा मिलेगा। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर वो झंडा अता फरमाया और इरशाद फरमाया, जा और मुड़ के ना देख, अल्लाह ताला तेरे हाथ पे फतह अता फरमा देगा। और हजरत अली पाक थोड़ा चलने के बाद रुक गए और फिर बगैर अर्ज किए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं लोगों से किस बात पर जंग करूं, किस बात पर लड़ूं? तो आका इस्लाम ने फरमाया, इनसे जंग करो हत्ता कि ये कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की गवाही दें। और जब वो ये कह ले तो उन्होंने अपने माल, अपने जान, तमाम चीजों को तुझसे महफूज कर लिया और उनका जो हक है अल्लाह के जिम्मे है, उनका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। तो आज की इस गुफ्तगू में ये चंद अहदीसे सहिया मैंने जो अर्ज की हैं वो इस मौजू पर के नेकी में सबकत इख्तियार करो। नेकी की बात आ जाए तो सहाबा इकराम की जिंदगियां ये हैं, यही औलिया कामिलीन की जिंदगियां हैं, सुलहा की जिंदगियां ये हैं कि उन्होंने पूरी पूरी जिंदगी अल्लाह रसूल की राह में वक्फ कर दी। फिर भी जब नेकी का मौका मिला, नेकी की सदा आई, सबसे पहले बढ़ के उसमें शामिल हो गए, सबसे आगे शामिल हो गए। तो इसलिए नेकी और अमाले सहले। फिर दूसरी बात खुलासे कलाम यह है कि नेकी उस वक्त करो जब तुम तंदुरुस्त हो, दौलत हो, खुशहाली हो, जब नफ्स तुम्हें मलामत करे, जब नफ्स कहे ये क्या तू नमाजी बन गया भाई, उस वक्त अल्लाह के हुजूर झुक जाओ। दाढ़ी रख रही है तो मौलवी बन जाएगा, उस वक्त लाजमी रखो। नफ्स का ये दौलत खर्च करेगा, ये यहां काम आ जाती, वहां काम आ जाती, ये बन जाता, वो बन जाता। इस हाल में तुम दौलत को राह खुदा में खर्च कर दो, अल्लाह के यहां मकबूल है। बीमारी से पहले, बुढ़ापे से पहले, मौत से पहले, कयामत आने से पहले नेक अमाल कर लो। हुजूर अलैहिस्सलाम बार बार ये कहते, फरमाया अमाले सहले में जल्दी करो और ये छोटी नेकी समझ के कभी छोड़ो नहीं। ये छोटी छोटी नेकियां कयामत के दिन पहाड़ों की मानिंद होंगी और छोटे छोटे गुनाह इनको छोटा समझ के ना करो। ये छोटे छोटे गुनाह कयामत के दिन पहाड़ों की मानिंद होंगे। इसलिए हजरात गिरामी कदर, कभी किसी नेकी को छोटा समझ के छोड़ो नहीं और किसी गुनाह को छोटा समझ के करो नहीं। नेकी जब मिले, जब बन पड़े, चाहे वो रास्ते से पत्थर ही क्यों ना हटा दिया जाए, यह भी एक नेकी है। किसी प्यासे को एक घूंट पानी ही क्यों ना पिला दिया जाए, यह भी नेकी है। जब मौका मिले कर गुजरो, यकीनन एक एक नेकी तुम्हारे नाम अमाल में लिखी जाएगी और कयामत के दिन अल्लाह अमाले सहले का तुम्हें अजर अता फरमा देगा।